Hello. विन सर गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. हाँ हाँ सर स्टूडेंट्स रेडी है तो अलाउ कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। इनको ले रहा हूँ। गुरु सर आप स्टार्ट कर सकते हैं सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मैं शेयर कर रहा हूँ सर, आप देख लेना सर प्लीज। विजिबल है सर आपका प्रेजेंटेशन। ओके थैंक यू। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू टुडे आवर Visual Basic for Applications, Objects and Properties and Methods virtual class। आज का सुबह कल समय में सभी को स्वागत कर रहा हूं मैं, और साथ साथ विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस सब्जेक्ट का अंदर ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स का टॉपिक में मैं स्वागत कर रहा हूं मैं। आई होप दैट ऑल आर इन फाइन। मैं आशा रखता हूं आप सब लोग सुरक्षा में हैं। फ्रेंड्स, एज यूजुअली आई एम thankful to all my departments, DGT and IT cells, as well as NIMI staff members, my NSTI NOIDA HOD Swati Seth madam, the principal Sister Mother madam, and all my staff members, the teachers and staff who are participated in this virtual and class. My special thanks to COPA and CSA students. This is my mobile number and email ID. Friends, before starting today class, I want to give a small announcement. Some of the students are asked to send the PPTs or student VBA coding. I already sent it two emails. Within 2-3 days, I want to finish these classes. Then after that, I will send all the notes in the group. Please wait 1 or 2 days only. कृपया आप लोग ये करिए, 2 दिन वेट करिए। ये VBA सब्जेक्ट का क्लासेस समाप्त होने के बाद ग्रुप में मैं भेज दूंगा PPTs, प्रोग्रामिंग, साथ साथ जिन्होंने ईमेल से रिक्वेस्ट की उनको ईमेल भी कर दूंगा। तो ओके फ्रेंड्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द टुडे क्लास। कृपया आप लोगों आज का क्लास में ध्यान दीजिए। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मींस डिस्कस किया है ऑन द सैटरडे। वी आर डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट इज मेंट बाय द oops concept, and then after that objects. So before introducing this oops concept, procedure oriented language concept is there in computer languages. They are divided into entire program or entire project into some subdivisions by using the procedures and functions. We are also implemented procedure concept in our student project. Blank form, but suppose whenever you need a blank form, then you are calling that new form button blank form. Whenever you run to the first time executing that form, backend user initialization task, that is also fulfilled through call that blank form procedure.
when you are applying the save button, then save procedure. If you want to inquire, find a particular student, then find sub procedure. So you're already implemented the procedures concept. Now, last one is object. So in an object oriented programming techniques, first of all, they create someone class. Then after that, they create number of objects. And through their functions or methods, they can change the behavior of that particular function. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में क्या है, एक क्लास डिफाइन करने के बाद उस क्लास का ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करने की वजह से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम काम में लेते थे, फिर फंक्शंस का द्वारा इसका बिहेवियर डिफाइन करते रहते हैं। मेंबर फंक्शंस का मेंबर्स ऐसे एक्सेस ले सकते हैं हम। तो उसके लिए हमने बताया क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंसेस। So here there is no need to discuss all these things. It is not a C++ or C# or VB.NET, Python like that. Okay, so all these are supported the OOPS concept. But here VBA is directly not a directly OOPS subject, but it can support the objects and methods. Visual Basic for applications, it cannot come under the directly OOPS concept, but it can support the objects, methods, properties like that. Okay, so here, especially if you want to consider our VBA के अंदर अगर बातचीत करेंगे तो an object represents an element of an application. एक application के ऊपर जो भी कुछ elements है, worksheet, workbook में तो form, so all these are called as objects of the VBA. An object represents an element of an application such as worksheet, workbook, cells, chart, range, form. Okay, so these are the objects: workbook, worksheet, cell, range, font, form, command button, text box, like this. So I want to quickly recap because we will enter into, we want to cover the remaining topic on the today class. So workbook, again, a collection is an object. It can contain several other objects. VBA के अंदर फर्दर फंडा भी है, कलेक्शंस को भी एक ऑब्जेक्ट कहते हैं हम। कलेक्शंस का मतलब उदाहरण के लिए वर्कबुक्स, हमने यूजर वांट टू वर्क साइमल्टेनियसली मोर देन वन वर्कबुक, यूजर इज ओपन 3-4 workbooks, he want to implement the coding, the result is affected on more than one workbook, so that is called as collection of workbooks. Again, we know very well about a workbook contains collection of worksheets, so number of worksheets is there. Again, a sheet is combination of rows, columns, cells, so group of continuous cells is called as a range. So all these are collections of the worksheets. तो फॉर्म्स के ऊपर क्या, अगर फॉर्म के एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कंसीडर किया तो फॉर्म के ऊपर क्या, टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, लेबल, कमेंट बटन, all these are the collections of the forms. So here in VBA, a collection is also an object. It can contain several other objects. तो प्रॉपर्टीज के बारे में कल का क्लास में मतलब बात किया हम लोगों ने, सैटरडे क्लास, लास्ट क्लास. A property is an attribute of an object that defines one of the object's characteristics, such as color, location, or इसका height, weight, visibility, value, all these are comes under the properties. Properties are nothing but characteristics of an object. Okay. Or specifications. Now, suppose for example, font object properties are name, size, color, style. अगर फॉन्ट के ऑब्जेक्ट में अगर कंसीडर किया तो फॉन्ट ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज है, फॉन्ट का नेम क्या, टाइम्स न्यू रोमन, वर्धमान, थॉमस, like that. So many fonts are there. We know very well about that one. Size 12, 14, 16 like that. Color, different colors. Style, bold, italic, underline. So these all are properties of the font object. So range की बात करने हैं तो continuous cells, Excel एक property of the range. Counting, another property. Value, एक particular cell के अंदर value हम fill up करने लिखना है, get करने, तो value is one of the property of the range. The same way form के अंदर caption, font, height, width, visible, SRO. So all these are properties of the forms. So now after that, if you want to change the characteristics of an object, you can change the values of its properties. अगर एक
ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स को बदलना है, चेंजेस करने हैं, तो उसको प्रॉपर्टीज को चेंज करना पड़ेगा। So yeah, properties we can change the characteristics of a particular selected object. एक selected object का characteristics बदलने के लिए properties को change करना। We connect an object to its property by a period or a dot. Suppose एक cells के लिए value लिखने के लिए dot value, that is one of the property. Dot font, like dot color. So we can represent a property object followed by dot then property name. ऑब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद डॉट टाइप फुल स्टॉप टाइप करने के बाद प्रॉपर्टी नाम टाइप करते हैं, फिर असाइन कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं। सेल इज आल्सो एन एक्सेल वीबीए ऑब्जेक्ट बट इट इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द रेंज ऑब्जेक्ट। कलेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, सो रेंज के अंदर सेल्स, सो सेल इज फर्दर ऑब्जेक्ट ऑफ द रेंज। So an object can also be a property. It depends on the hierarchy of the project. ये कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है, इसका हायरार्की है। सपोज रेंज सेल्स के ज्यादा फर्स्ट हायरार्की है, हायर लेवल। अगर सपोज इसका नीचे फॉन्ट है तो इसके अंदर वो लोअर है, कलर फॉन्ट कलर। सो मिडिल सेल इज दैट। एक स्टेप हायर हायरार्की रेंज, फिर डाउन कलर, लाइक दैट। सो रेंज A1 कॉलम टू A3 सेल्स 1,1। दिस इज एंटायर रेंज A1 से लेकर A10 A100 बता सकते हैं हम, तो रेंज हो गया। फिर रेंज के अंदर एक पर्टिकुलर सेल की बात करते हैं हम, सो रो कामा कॉलम, आफ्टर दैट इंटीरियर कलर फिलअप करने। फॉन्ट इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज बिलोंग्स टू द रेंज ऑब्जेक्ट। फॉन्ट रेंज का सब ऑब्जेक्ट है, सो फॉन्ट हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी। अगेन फॉन्ट के अंदर भी अपना अलग प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल फॉन्ट एक कलर से फिलअप करना है हम, सो रेंज डिफाइन किया हमने। फिर आगे दूसरी सब सब्जेक्ट है ये फॉन्ट ऑब्जेक्ट, फिर इसके अंदर कलर प्रॉपर्टी है, येलो कलर डिफाइन कर रहे हैं। एंटायर इस रेंज को, ये ओनली वन पर्टिकुलर सेल, सिंगल सेल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मींस A1, बट हियर एंटायर रेंज कॉलम विल बी फिल्ड बाय येलो कलर। So the color property of the ये है बता। So no need to type the properties entire names at the time of typing or at the time of implementing the VBA coding to a particular object. Then there is no need to type the entire properties names. User या तो प्रोग्रामर कोडिंग टाइप करते समय पर कोडिंग विंडो के अंदर पूरा एंटायर प्रॉपर्टीज नाम टाइप करने की जरूरत नहीं, रट्टा मारने के लिए भी जरूरत नहीं है। सो ऑब्जेक्ट का आगे डॉट टाइप करने के बाद ऑटोमेटिकली एक स्टार्टिंग लेटर टाइप करिए, नहीं तो बाय डिफॉल्ट भी शो करते रहते हैं। फिर उनमें से हम डाउन एरो से डबल क्लिक करने की वजह से, टैब दबाने की वजह से हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये क्लास में लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल बताया है। एक देखिए रेंज डिफाइन किया, डॉट फॉन्ट डॉट आगे मतलब फॉन्ट ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज, ये बोल्ड कलर, लाइक दैट, बैकग्राउंड कलर। काउंट इज आल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ द रेंज ऑब्जेक्ट। हमने एक रेंज डिफाइन किया, फिर इसके अंदर एक सब ऑब्जेक्ट है काउंट, तो गिनती करने के लिए नंबर ऑफ सेल्स रेंज के अंदर कितना है। सो इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट द काउंट ऑब्जेक्ट ऑफ द रेंज ऑब्जेक्ट, द सिंटैक्स इज लाइक दैट। अगर सपोज देखिए टी काउंट टोटल काउंट नाम से एक वेरिएबल को डिफाइन किया हमने इंटीजर, फिर टी काउंट इज इक्वल टू रेंज A1 से लेकर A6 और A10 A50, देन डॉट काउंट होने की वजह से जितना भी सेल्स है वो सेल्स का गिनती करके फिर न्यूमेरिक वैल्यू को, करस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिटर्न करेगा। वो वैल्यू टी काउंट टोटल काउंट के अंदर स्टोर करते रहता है। फिर हमें पता होने के लिए हम डिस्प्ले कर रहे हैं उसको टोटल काउंट का अंदर जो रिजल्ट है ए सेल 10 का अंदर। Then methods normally do something or perform certain operations, like in classes functions can define the behavior of the particular class or object. The same way here these methods are do something or to perform certain operations on the particular objects. First of all, you please try to understand one objects having two things. One is properties, second one is methods.
Properties are nothing but characteristics, specifications. If you want to change the characteristics, you can change the properties of the particular object. Then second one is objects having methods. So these methods can do something or it can perform a certain operations. मतलब क्या है, एक वर्कशीट के अंदर सारे डाटा जो आपने टाइप किया उस कंटेंट्स को क्लियर कर सकते हो, टेबल फॉर्मेट्स को क्लियर कर सकते हो, नहीं तो एंटायर वर्कशीट के अंदर डाटा को क्लियर कर सकते हो. That is doing something. You can perform some operation, clearing operation. So clear the contents. So that is called as a method. Method normally do something or perform certain operations. Okay. So now this is the syntax of the range A1 से लेकर A6 तक कंटेंट्स को क्लियर करने के लिए. फॉर्मेट्स को भी क्लियर कर सकते हैं. अगर केवल क्लियर लिखा है तो all things in home menu this option is already available. Okay. You can also select your own range of the cells and clear the contents by using the input box function and a clear contents method. Clear contents is one of the method. In I think you people sir remember the previous classes at the time of explaining if, select, loops. There are two ways to read the variable values. You can assign the value directly in the code or you can get or read randomly through keyboard at the time of running that particular loop statement or if or whatever it may be coding. मैंने पुराना क्लासेस के अंदर क्लियरली समझाया आप लोगों का एक वेरिएबल के अंदर डाटा को दो तरीके से हम मतलब रीड कर सकते हैं, तो पास कर सकते हैं. एक इनिशियलाइजेशन ऑपरेटर का सहायता से नंबर इज इक्वल टू 5, मार्क्स इज इक्वल टू 550. तो 550 वैल्यू मार्क्स वेरिएबल के अंदर हम पास कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं हम. दैट इज वन वे. सेकंड वन, दैट इज द कांस्टेंट 550. सो यू कैन रन योर coding or program number of times. The marks contains only 550. But if you want to get random values of the students' marks, मतलब अलग अलग वैल्यूज को रीड करना चाहते हैं तो तब कैसे करते थे हम? इनपुट बॉक्स कमेंट्स का द्वारा. तो वेरिएबल नाम फर्स्ट लिखते थे इज इक्वल आगे इनपुट बॉक्स ब्रैकेट्स के अंदर प्रॉम्प्ट यूजर पर्पस. सो उसी तरह अगर एक रेंज को रीड करना है आप कीबोर्ड से, तो इनपुट बॉक्स का सहायता से रेंज को रीड कर सकते हैं. तो उसके लिए क्या है सिंटेक्स? सेलेक्ट रेंज एक वेरिएबल, आप एस रेंज लिखिए, कुछ भी लिखिए XYZ इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, ये तो कमांड रीड करने के लिए कीबोर्ड से एंटर. दिस इज द प्रॉम्प्ट. लेकिन टाइप करते समय पर कोलन का साथ टाइप करना पड़ेगा A1 कोलन A10. सो दैट इज द वन रेंज. सो दैट रेंज विल बी पास ऑन टू द सेलेक्ट रेंज. सो रेंज सेलेक्ट रेंज डॉट क्लियर कंटेंट्स. आप एक पर्टिकुलर सेलेक्ट किया गया एरिया को, एक रेंज को, एक छोट मतलब एंटायर वर्कशीट से एक सेलेक्ट किया गया एक छोटा सा जगह को आप क्लियर करना चाहते हैं, तो फिर उस रेंज मतलब कॉन्सेप्ट से, रेंज मतलब कॉन्सेप्ट से आप सेलेक्ट किया गया रेंज का अंदर सेल्स का कंटेंट्स क्लियर कर सकते हैं हम. रेंज इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ना. सो रेंज सेलेक्ट किया गया रेंज और क्लियर कंटेंट्स. दिस वन RENG रेंज इज द मेथड टू ऑब्जेक्ट. So clear content is the method. Okay, हम range object को clear content method का द्वारा select किया गया range को हम मिटा रहे हैं. To clear entire worksheet contents, पूरा worksheet के अंदर contents को clear करने के लिए भी sheet 1 जो भी sheet select करिए dot cells then clear contents. Last class में what happened? Time is reached finished as well as I was already open. I opened that previously means student form workbook. That one contains so many worksheets 8 and 9 new worksheet. I am working on the 9. I am applying the sheet 1 command. So due to that reason we are not seeing the result on the sheet 9. sheet 9 पर हम काम कर रहे हैं sheet 1 पर contents को क्लियर करने के लिए, लेकिन रिजल्ट किसके ऊपर अप्लाई करेगा, लागू करेगा? sheet 1 के ऊपर लागू करेगा. हम sheet 9 पर देखेंगे तो sheet 9 पर पहचान नहीं सकते, हम देख नहीं सकते उसका रिजल्ट. So please in which sheet if you want to remove or clear the contents, you can select sheet का आगे sheet number, sheet 1, sheet 2, sheet 3. ओके, फॉर्मेट्स क्लियर करने के लिए ये वाले, कंटेंट्स क्लियर करने के लिए ऊपर वाली sheet 1 डॉट क्लियर कंटेंट्स. अगर कमेंट बटन लेने के बाद इस तरह हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं.
Okay, then friends, here select method. If you want to select a particular range from the worksheet, then range, mention the range, then after that dot select. Okay, dot select is the one of the method. फिर सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं. सभी क्लियर करने के लिए एक रेंज को सेलेक्ट किया हमने, फिर उस रेंज को क्लियर करना है. ठीक है, वी कैन सी प्रैक्टिकली, बट वी वांट टू कवर some other things, no, worksheet and workbook properties. Click it here. Autofill method is there. एक ऑब्जेक्ट के साथ ऑटोफिल के सहायता से हम डाटा को ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं. ऑटोफिल ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल इन द MS Excel होम मेनू. The autofill, if you want to study or if you want to know the autofills in details in home menu, first menu, you can find out the autofill. Then different options are there. Series, multitude means continuously series wise fill up कर सकते हो. Growth नाम से multiplication कर सकते हो. नहीं तो left right up down ऑटोमेटिकली ऊपर तरफ से फिल कर सकते हो, नीचे तरफ से फिल कर सकते हो, राइट साइड लेफ्ट साइड. और एक्सेल शीट पर क्लिक करते समय पर बॉटम साइड राइट साइड वो नाब एक स्मॉल बिंदु जैसे एक सिंबल है, उसको कहते हैं ऑटो फिलर. प्रैक्टिकली आई विल शो, मैं अभी दिखाता हूं मैं प्रैक्टिकली. सो ऑटो फिल नाम से एक मेथड है, ऑब्जेक्ट को ऑटो फिल का सहायता से हम डाटा को फिलअप कर सकते हैं. सिंटैक्स इज एक्सप्रेशन डॉट ऑटो फिल. डेस्टिनेशन मींस जो सोर्स है, जिस जहां पर आपने फिलअप करना चाहते हैं. देन टाइप, व्हाट टाइप ऑफ डाटा. सपोज हियर लिख इट expression in object. Destination is required range of the object and source. Type is series such as numbers, days of the week, months. हमें पता ना डाटा एंट्री वगैरह करते समय पर 12 months टाइप करने के लिए there is no need to type the January, February, March like up to December. You can type only 2 numbers, January and 2 months names, January and February. Then drag it to that autofill. It can fill it. But if you want to implement that thing in VBA coding, by using this object and methods concept, you can implement that. For example, like this range 1 A1 का अंदर सपोज हमने 1 टाइप कर रहे हैं, रेंज A2 का अंदर 2. ओके, देन रेंज A1 कॉलम टू A2, मतलब जो सोर्स हमने बता रहे था. डॉट ऑटोफिल डेस्टिनेशन रेंज A1 से लेकर A10. देन व्हाट हैपेंड 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक ऑटोमेटिकली फिल अप करें. ओके, again week names, cells 1 comma 1, dot value is equal to Monday, again Tuesday, then up to Sunday tak. Suppose if you want to fill now that one, range source 1 first one, autofill destination कहाँ तक fill up करना है, A1 से लेकर A7. type क्या, Excel filled days. Here friends, please observe, अगर suppose if you want to type months and Excel months type करना है, days है ना तो days and weekdays. Okay, now after that months, this is the keyword Excel fill months. So months names automatically fill up करने. Okay, then the same Sunday Monday like. Okay, so here selected range के अंदर भी हम डाटा को क्या कर सकते हैं, और मतलब क्लियर करने के लिए, ऑटो फिलअप करने के लिए भी आप फिलअप कर सकते हो डाटा. मतलब शीट 1 के अंदर कंटेंट्स को क्लियर किया है फर्स्ट कमेंट से, स्टेटमेंट से. फिर एक रेंज कीबोर्ड से रीड करेंगे हम, लेकिन फर्स्ट 1 2 हमने दिया है, डाटा टाइप करके रखा है, लेकिन वो रेंज के अंदर दिया गया कीबोर्ड से A1 से लेकर मैंने A50 टाइप किया, तो 50 तक ऑटोमेटिकली फिलअप कर. You can change the range randomly रन करते समय. Then we will enter into the workbook properties. If there is no time, first of all you will try to understand the concept. So workbook प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या चीज आ सकता है. टू रेफर वर्कबुक प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स है, so we use workbooks. एक वर्कबुक प्रॉपर्टीज का अगर हम बातचीत करेंगे तो कोडिंग द्वारा वर्कबुक्स शब्द लिखना पड़ेगा. yes means plural, because the reason is that we are dealing with a collection of workbooks most of the time. So using workbooks enable us to multiple means more than one book. वर्कबुक्स ऑब्जेक्ट्स का बारे में हम डिस्कस करते समय पर, बातचीत करते समय पर, या तो वर्कबुक्स का ऑब्जेक्ट्स का कोडिंग VBA के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए वर्कबुक नहीं लिखेंगे, वर्कबुक्स लिखना है. इसलिए लिखते हैं हम
शुरू में मैंने बताया यूजर एक से अधिक वर्कबुक्स को ओपन करके फिर काम करते समय पर वर्कबुक 1, वर्कबुक 2, वर्कबुक 3, वर्कबुक 4 या सपोज स्टूडेंट वर्कबुक, मास्टर वर्कबुक, आफ्टर द ट्रेनी और सम अदर कॉलेज, या तो सपोज मार्क्स to different workbooks are there. Suppose the student is already opened more than one workbook. So if he want to implement workbook properties, so then in the coding workbooks लिखना है. You can mention the workbooks. Workbook of 1 means it will represent the I index. You can mention 1, 2, 3. So first time today we are open your system. We are open the first time student workbook file. So student workbook file index is 1. After that you are open master. So master workbook file is index is 2. After that you are open trainee, third workbook. So workbooks of 3. The index value of the trainee, third time you are तीसरी बार जो तीसरी फाइल आपने ओपन किया है तो वो trainee है, इसलिए trainee का इंडेक्स वर्कबुक्स के अंदर 3 है माना. तो लाइक दिस इंडेक्स पर्सन वर्कबुक्स का आगे जो लिखा हमने आई का अंदर, उससे हम वर्कबुक्स को ओपन किया गया वर्कबुक्स को कंट्रोल कर सकते हैं. लाइक वन बाय वन at the time of your opening your workbooks, required workbooks, this VBA internally in backend it can assign the index values. पहली बार जो जिस वर्कबुक आपने ओपन किया, हो सकता है आपने स्टूडेंट का जगह पर मास्टर को ओपन किया होगा, नहीं तो मार्क्स को ओपन किया होगा, सो मार्क्स को इंडेक्स 1 दे देगा. इसी तरह नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप जितना भी वर्कबुक्स का हम खोलते हैं उसका एक एक नंबर बढ़ाते जाते हैं. तो वो कॉन्सेप्ट व्हाई वी आर डिस्कसिंग about that one indices means in that VBA coding to that index also you can get the particular file name, workbook name, workbook path, कहाँ सेव किया है हमने. So which is deeply next हम देखेंगे. The workbook has a number of properties. Some of the common properties is name, means workbook name. अब जानना है, नहीं तो नेम असाइन करना है तो नेम डिस्प्ले करना है. वर्कबुक पाथ, फुल नेम, मतलब वर्कबुक पाथ मींस इट कैन डिस्प्ले द location of that particular file saved in that particular drive and folder. पाथ का मतलब क्या है, इस वर्कबुक फाइल कौन सी फोल्डर मतलब ड्राइव का अंदर CD और कौन सी फोल्डर के अंदर अपने सब फोल्डर के अंदर सेव किया है, वो पूरा रास्ता मतलब पाथ बता देगा बाय स्लैश स्लैश का कॉन्सेप्ट से. एज IT स्टूडेंट सब लोग ये जानते हैं. ओके, MS DOS में के अंदर भी पाथ नाम से कमांड है, पाथ सेट करते रहते हैं. ओके, टू डिस्प्ले फर्स्ट ओपन वर्कबुक नेम, जो पहली बार मैंने मतलब 4 वर्कबुक्स फटाफट ओपन किया मैंने, फिर मैं जानना चाहता हूँ मेरा पहली वर्कबुक क्या है, पहली वर्कबुक का नाम, सिंपल मैसेज बॉक्स के सहायता से आप डिस्प्ले कर सकते हो. वर्कबुक 1 डॉट नेम, देन फर्स्ट टाइम व्हिच फाइल इज योर ओपन, दैट फाइल नेम विल बी डिस्प्लेड लाइक दिस. टू डिस्प्ले द करंट वर्किंग वर्कबुक नेम, मतलब मैंने 4 वर्कबुक्स को खोल दिया फटाफट, चौथी वर्कबुक में काम कर रहा हूँ या तो बीच वाली सेकंड या थर्ड में काम कर रहा हूँ मान लीजिए. सो थर्ड वर्कबुक इज द करेंटली वर्किंग वर्कबुक. प्रस्तुत समय पर मैंने तीसरी वर्कबुक के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं उस तीसरी वर्कबुक का नाम क्या है ये मैं तो इसका नाम डिस्प्ले करना चाहता हूँ मैं वाया कोडिंग. सो उसके लिए ये लिखना है मैसेज बॉक्स workbook dot name. This workbook will indicate current workbook. Okay, suppose as per examples, first one is student, second one is master, third one is trainee. So I am working in the trainee. So if I want to know the current working workbook name, so this workbook dot name, so this workbook dot name will return the currently working workbook name. प्रस्तुत समय पर हम जिस वर्कबुक के अंदर हम काम कर रहे हैं उस वर्कबुक को नाम को गेट करने के लिए दिस वर्कबुक डॉट नेम प्रॉपर्टीज का सहायता से हम करंटली वर्किंग वर्कबुक का नाम को गेट कर सकते हैं. अगर सपोज इंडेक्स के हिसाब से देखना है वर्कबुक 1, वर्कबुक 2, वर्कबुक 3, प्रेजेंट वर्कबुक के लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस वर्कबुक डॉट नेम. So then to display the current working workbook path, जो प्रस्तुत समय पर जिस वर्कबुक को ऊपर वर्कबुक के अंदर आप काम कर रहे हैं ना उस वर्कबुक का रास्ता डिस्प्ले करने के लिए जानने के लिए
कमेंट ये है दिस वर्कबुक डॉट पाथ ओनली। सो ऊपर हमने ये बताया ना, आपको ये इतना ध्यान रखें प्लीज, प्लीज रिमेंबर ओनली थ्री पॉइंट्स। आप कृपया मेहरबानी से 3 पॉइंट्स को ध्यान रखिए। वर्कबुक प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं हम, वर्कबुक नेम, वर्कबुक पाथ, वर्कबुक फुल नेम, और भी है, सिर्फ हम 3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो वर्कबुक, दिस वर्कबुक का आगे नेम है तो करंट वर्कबुक का नाम डिस्प्ले करेगा अगर मैसेज बॉक्स का है तो। अगर उसका पाथ जानना है तो दिस वर्कबुक डॉट पाथ लिखना है। ओके, सो मतलब इन तीनों को चेंज कर सकते हो। दिस वर्कबुक डॉट फुल नेम, फुल नेम में क्या होता है, पाथ का साथ साथ वर्कबुक फाइल नेम ही डिस्प्ले करता है। पाथ में केवल लास्ट फोल्डर तक, सब फोल्डर। फुल नेम में पूरा पाथ का साथ साथ जो करंट वर्कबुक का नाम भी डिस्प्ले कर देते हैं। देखिए फर्स्ट ओनली पाथ मीन्स क्या, सी यूजर्स डेल डेस्कटॉप वीबीए। इसमें क्या बता रहा है, सी /users डेल डेस्कटॉप वीबीए, फिर वीबीए के अंदर फाइल नेम स्टूडेंट। सो दैट इज द वर्कबुक्स वन डॉट फुल नेम, इट विल डिस्प्ले पाथ along with वर्कबुक नेम। पूरा पाथ का साथ साथ वर्कबुक का नाम भी डिस्प्ले करते हैं फुल नेम का प्रॉपर्टीज से। There are a number of methods are associated with the workbook object. वर्कबुक के अंदर मेथड्स भी है। अभी तो हमने ऊपर क्या देखा है, नेम, पाथ, फुल नेम, प्रॉपर्टीज। अब मेथड्स, ठीक है ना, मेथड्स कैन परफॉर्म एन ऑपरेशन। मेथड्स डेफिनेशन में हमने देखा है, तो ये कौन सी ऑपरेशन क्या करेगा, ऑपरेशन मींस इट कैन डू समथिंग। व्हाट इज दैट वन, टू सेव ए फाइल, टू सेव एज ए फाइल, और ओपन, क्लोज एंड अदर जो फाइल मैनेजर के अंदर जो भी ऑप्शन है प्रिंट वगैरह ये अप्लाई कर सकते हैं। यू पीपल्स, आई थिंक यू आर हैव एन आइडिया इन एमएस एक्सेल वन ऑफ द ऑप्शन इज देयर protection, workbook protection, worksheet protection. Workbook protection is affected on entire workbook, means शीट्स के ऊपर लागू करते हो। एक शीट को डिलीट नहीं कर सकते, एक शीट नाम चेंज नहीं कर सकते, हम एक शीट को मूव नहीं कर सकते वर्कबुक के अंदर, या फिर नया शीट को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज वर्कबुक प्रोटेक्शन। वर्कशीट प्रोटेक्शन मींस एक शीट का अंदर क्या क्या चीज हो सकते हैं, कॉलम हो सकते हैं, एक रो हो सकते हैं, एक सेल हो सकता है। सो मतलब क्या, एक रो को मिटा नहीं सकते हो एक स्टेटमेंट के अंदर, वर्कशीट में एक नया रो को ऐड नहीं कर सकते हो। अगर वर्कशीट प्रोटेक्ट है, वर्कशीट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी सेव किए गए स्टेटमेंट के अंदर एक वर्कशीट के अंदर एक कॉलम को डिलीट नहीं कर सकते, नया कॉलम को ऐड नहीं कर सकते। सो दैट इज कॉल्ड एज वर्कशीट प्रोटेक्शन। So please try to understand the workbook and worksheet the same way. Workbook having some methods. If you want to save a workbook, or if you want to make a duplicate of the entire workbook, so save as. If you want to open already saved workbook, so these are the methods. If you want to close an workbook, then close method. Okay, suppose save as method का पर्पस क्या, कैसे लिखते हैं हम, प्राइवेट सब कमेंट बटन को ऐड किया हमने, फिर डबल क्लिक किया, fname डायरेक्ट uvba के अंदर ये मेथड है, fname is equal to application dot get save as file name, then this workbook dot save as, मतलब जो प्रस्तुत समय पर this workbook अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इसी वर्कबुक को मैं save as डुप्लीकेट दूसरा नाम से सेव करना चाहता हूँ, किस नाम से सेव करना चाहता हूँ, वो डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। जैसे हम एमएस एक्सेल में, एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में सेव एज क्लिक करते हैं तो F12 की दबाते हैं शॉर्टकट की, तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उस सेव एज डायलॉग बॉक्स में हमें नाम देना पड़ेगा, पाथ, रास्ता, फोल्डर वगैरह बता सकते हैं। वो डायलॉग बॉक्स डायरेक्टली ओपन कर देते हैं वीपीए ये कमांड, इस लाइन ये कमांड की वजह से। ओके, या और भी तरीके से अगर आप सिंपल तरीके से देखिए, ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा रन करते समय पर। अब आप पाथ डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स पर बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स तो खुलेगा, आप चेंज कर सकते हो, फिर नाम टाइप करके फिर सेव। तो ये सेव एज मेथड वर्कबुक का, ठीक है। ऑलरेडी सेव किया गया फाइल को ओपन करना चाहते हो आप, सो वर्कबुक मेथड में क्या है, वर्कबुक्स डॉट ओपन ब्रैकेट के अंदर फाइल नेम बताना पड़ेगा। स्टूडेंट फाइल को ओपन करना चाहते हो तो डॉट xlx और डॉट xlxm, सो हियर वर्कबुक्स डॉट ओपन देन फाइल नेम। ओके, so then friends, here look at here, this one is the example,
after that, if you want to close an workbook, एक वर्कबुक को क्लोज करना चाहते हो via methods, वर्कबुक methods. Alt F4 दबाने के वजह से वर्किंग मीन्स currently working file will be closed. सर ऑलरेडी Alt F4 है तो हमें क्यों ये मेथड्स लिखना है? इसलिए लिखना है वाया कोडिंग मीन्स आप स्टूडेंट वर्कबुक के अंदर काम कर रहे हो आप, लेकिन ट्रेनी वर्कबुक को क्लोज करना चाहते हो आप. तो ट्रेनी वर्कबुक से क्या किया आपने? ट्रेनी वर्कबुक को खोला, आपने एक्टिवेट किया उस सीट को, फिर उसका डाटा को प्रोग्राम से क्या किया आपने? स्टूडेंट वर्कबुक के अंदर एक सीट के अंदर डाटा लेकर आए हो. ट्रेनी वर्कबुक के अंदर काम कंप्लीट हो गया है. फिर ट्रेनी वर्कबुक को आप क्लोज करना चाहते हो तो स्टूडेंट वर्कबुक में काम करके, तो फिर उसके लिए ये कोडिंग. अब स्टूडेंट वर्कबुक में काम करते समय पर ट्रेनी वर्कबुक को खोलना चाहते हो तो फिर ओपन. ठीक है, so this one again the original first one. At the time of explain this thing, ना I remembering the previous first one. क्या फॉर्म डिफाइन करते समय पर आप लोगों को ये चीज बताया. एक तो प्रॉपर्टीज में क्या डिजाइन करते समय पर फिजिकली चेंजिंग, कीबोर्ड से हम चेंज करते रहते हैं प्रॉपर्टीज इंडेक्स में जाके, लेकिन फॉर्म को रन करते समय पर, एग्जीक्यूट करते समय पर उसी प्रॉपर्टीज को हम जिस प्रॉपर्टीज मेथड से न तो मेथड्स और प्रॉपर्टीज कॉन्सेप्ट से क्या करते हैं, हम कोडिंग द्वारा प्रॉपर्टीज को हम चेंज करते हैं. दैट इज लॉजिकल. सो इन द सेम वे आप ओपन फोल्डर में जाके फिर फाइल नेम सेलेक्ट करके ओपन बटन पर क्लिक करने की वजह से आपको पता है ट्रेनी फाइल किस फोल्डर के अंदर सेव किया आपने, उस पाथ बताने की वजह से डायरेक्टली आप उस ट्रेनी फाइल को खोल सकते हो via कोडिंग. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस वर्कबुक मेथड्स. वर्कबुक मेथड का मुख्य एडवांटेज, मुख्य मतलब लाभ ये है, फिजिकली आप उस पर्टिकुलर वर्कबुक फाइल पर जाके डबल क्लिक किया तो सिंगली जो भी ओपन वगैरह इतना करने की जरूरत नहीं है. अगर ये कोडिंग इंप्लीमेंट करते समय पर, एग्जीक्यूट करते समय पर, whenever the controller is reached to this line, then automatically in back end this particular file will be opened. So this is student workbook will be opened. कैसे करते हैं ये रहा देखिए, वर्कबुक्स डॉट ओपन, या तो ब्रैकेट के अंदर पूरा पाथ बताना पड़ेगा, या तो वर्कबुक 1 जो भी है उसको नाम भी दे सकते. अब देखिए 4 वर्कबुक्स को मैंने ओपन करके बैठा हूं. पहली वर्कबुक को क्लोज करना है तो वर्कबुक्स डॉट 1 डॉट क्लोज, वर्कबुक्स विद इन द ब्रैकेट 1 डॉट क्लोज. इससे क्या होता है, पहली वर्कबुक को क्लोज करेगा लाइक दिस. नाम भी मेंशन कर सकते. पहली वर्कबुक क्या, अभी जस्ट मैंने 15 मिनट्स 20 मिनट्स से एक्सप्लेन करके आ रहा हूं. So first workbook is my workbook is student, second one is master, third one is trainee. Suppose workbooks of 1 dot close, then what happened, student workbook will be closed. The same way now we are entering into the worksheet properties. Friends, today we will complete this theoretical portion. Next class we can implement these things practically. कल का क्लास में हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, साथ साथ इवेंट्स भी. आप प्लीज समय कम है, कृपया ध्यान दीजिए. फर्स्ट वी वांट टू क्लियर द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. तो अभी तक हमने क्या देखा है, रेंज का बारे में सबसे शुरू में हमने डिस्कस किया, रेंज का प्रॉपर्टीज, रेंज का मेथड्स, देन वर्कबुक प्रॉपर्टीज, वर्कबुक मेथड्स. वर्कबुक प्रॉपर्टीज का बारे में बातचीत करते समय पर हमने क्या डिस्कस किया है, नेम, पाथ, फुल नेम. वर्कबुक प्रॉपर्टीज. वर्कबुक मेथड्स का बारे में क्या डिस्कस किया हमने, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, लाइक दैट, प्रिंट वगैरह जो भी इतना करना है. अब वी विल एंटर इनटू द वर्कशीट प्रॉपर्टीज. अभी हम वर्कशीट के अंदर प्रवेश किया. वर्कबुक कंटेंट्स नंबर ऑफ वर्कशीट्स हमें पता है बाय डिफॉल्ट, शीट 1, शीट 2, शीट 3 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी तरफ से, नहीं तो ओपन सोर्स कंपनी तरफ से क्या है, 3 शीट्स को बाय डिफॉल्ट देख सकते हैं. तीनों शीट कंप्लीट होने के बाद एक्सेल शीट का नीचे स्टार सिंबल है, न्यू टैब पर क्लिक करने की वजह से एक शीट को ऐड कर देगा. ये तो सबको पता है. ओके, so now we are discussing about the individual worksheet properties.
Sir, I want to change the options of that number of worksheets. मैं number of worksheets को control करना चाहता हूँ मैं, मतलब कैसे मैं जब भी मैं MS Excel वर्कबुक खोलना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं इसको 5 वर्कशीट्स आना चाहिए या 10 आना चाहिए, या तो 2 ही है या तो 1 ही है। उसके लिए आप फाइल मेन्यू पर जाइए, नीचे फाइल मेन्यू में MS Excel कोई भी एक वर्कबुक ओपन करने के बाद फाइल या तो ऑफिस रिबन पर जाने के बाद जो फुल डाउन मेन्यू में से एग्जिट का ऊपर या तो एग्जिट का बगल में ऑप्शंस नाम से एक ऑप्शन है, ऑप्शंस, एक्सेल ऑप्शंस। इस एक्सेल ऑप्शंस में जाके ढूंढ लीजिए, तब उसमें एक शीट ऑप्शंस है, नंबर ऑफ शीट्स ओपन। अब उसमें बाय डिफॉल्ट 3 होगा, आप उसको चेंज कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। चलो लीव इट, दैट इज द नॉट मैटर हियर, इसके लिए हम इधर वो बात नहीं है। लेकिन हम अभी वर्कशीट प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो वर्कशीट प्रॉपर्टीज मींस again worksheet contains the rows, number of columns, ठीक है, number of means sheets वगैरह गिनती करना है। इसके लिए the worksheet has its own set of properties and methods. When we write VBA code involving the worksheet objects, we use worksheets. वर्कबुक के बारे में बात करते समय पर वर्कबुक्स जैसे लिखते थे, उसी तरह वर्कशीट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते समय पर वर्कशीट्स लिखना है कोडिंग का अंदर। तो सम ऑफ द कॉमन यूजफुल वर्कशीट प्रॉपर्टीज आर वर्कशीट नेम, वर्कशीट्स को गिनती करने के लिए काउंट, सेल्स, कॉलम्स, रोज एंड कॉलम विथ लाइक सो मेनी ऑप्शंस आर। तो हियर सपोज काउंट से क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वर्कबुक के अंदर सपोज मान लीजिए आप सपोज जे तक काम कर रहे हो, तो जे का कॉलम वैल्यू पता नहीं आपको, तो फिर ये काउंट फंक्शन का सहायता से आप जे वैल्यू A1 से लेकर जे तक काउंट कर दिया, तो फिर 10 आ गया, तो मतलब क्या, जे कॉलम इज 10। तो काउंट प्रॉपर्टी के साथ आप काउंट कर सकते, टोटल काउंट्स भी बता देगा पूरा कॉलम्स का। नहीं तो सेलेक्ट किया गया कॉलम्स का काउंट बताना चाहते हो आप, सपोज रोज 10,48,665 समथिंग, सो वो काउंट करना है आपको डायरेक्टली एंटायर रोज or selected rows. So through this properties we can do or we can achieve that one. Okay dear friends, worksheet dot name, एक वर्कशीट का नेम को सपोज आप गेट करना चाहते हो, वर्कशीट को काउंटिंग करने के लिए वर्कशीट डॉट काउंट, वर्कशीट कॉलम्स को काउंट करने के लिए वर्कशीट्स डॉट मींस वन मींस फर्स्ट, मेरा स्टूडेंट इज द फर्स्ट वर्क, तो इसमें फर्स्ट पहली शीट के अंदर सेल्स कॉलम्स को गिनती करने के लिए, पहली वर्कशीट के अंदर रोज को गिनती करने के लिए वर्कशीट्स इन द ब्रैकेट 1 डॉट रोज डॉट काउंट। सम ऑफ द वर्कशीट मेथड्स, these are the properties, again methods, workbook having properties, again methods, worksheet having properties, again methods. Suppose if you are discussing about the range having properties and range having methods. Why in VBA, if an object is there, an object having two things, one is properties, second one is methods. So range one object, so range properties, range methods. Workbook one object, workbook properties, workbook methods. Worksheet another object, again worksheet properties, these are the properties, name count, row count, column count. Again worksheet having some methods. So what are the methods? Suppose if you want to add a worksheet into your working workbook, सपोज प्रस्तुत समय पर एक वर्कबुक के अंदर काम करते समय पर मैंने स्टूडेंट वर्कबुक के अंदर काम कर रहा हूं मान लीजिए, तो स्टूडेंट वर्कबुक के अंदर और एक वर्कबुक को कोडिंग का द्वारा यूजिंग दिस मेथड्स, वर्कशीट मेथड्स, if I want to add a new worksheet, then I can use this add method. After finishing up my job, my task, if I want to delete a particular worksheet in a particular workbook, means currently working workbook, then delete method is there. It can delete a worksheet. ऐसे एक वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए select method,
वर्कशीट को डुप्लीकेट शीट बनाना, सेव एज, तो कॉपी, ठीक है। सो दीज आर द बेस्ट, ऑल दीज आर वर्कशीट मेथड्स, ओके। तो लाइक इनको प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करने के लिए नेक्स्ट कल का क्लास में हम प्रैक्टिकली देखेंगे, फिर समय मिलने के बाद इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वर्कशीट्स डॉट ऐड, इट विल ऐड ए न्यू वर्कशीट, वर्कशीट्स डॉट डिलीट, सो वर्कशीट 1 को डिलीट करना है। अगर रोज को डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट करना है, वो अलग प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखिए वर्कशीट डॉट रोज 1 डॉट सेलेक्ट करने के लिए रो 1 विल बी सेलेक्टेड, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी, फिर कॉपी करने के बाद पेस्ट, ओके। रेंज ऑप्शन का सहायता से भी, मतलब रेंज का साथ ही हम शुरू करेंगे, जैसे ऑटो फिल के बारे में हमने बातचीत किया है, ठीक है। तो वो कैसे एक्सेल में इंप्लीमेंट करेंगे, सो ये ना लास्ट मोमेंट में अगर हमने कॉल दिया तो फिर कंफ्यूज वाली मिस्टेक्स आता रहता है। वी हैव ओनली 4 minutes टाइम, due to that reason I means I cannot want to enter into that practical section within these 2-3 minutes, it is not implemented. So friends, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल का क्लास में हम ये इसका प्रैक्टिकल करेंगे, हम साथ साथ समय है तो इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। So already I was given the announcement, so this VBA started from April 6 onwards, अप्रैल 6 तारीख से लगातार मैंने कंटिन्यूसली क्लासेस ले रहा हूँ। सो मैं इसलिए मैंने भी टारगेट फिक्स किया है जो अभी जून 6 तारीख का अंदर यानी इतना दूर भी नहीं तो इसी हफ्ते के अंदर 2-3 क्लासेस में मैं ये VBA कंप्लीट करना चाहता हूँ। आप लोगों प्लीज देखिए सिलेबस के हिसाब से, जो मैंने अगर शुरू से जो बच्चे अटेंड किया तो फिर मैक्सिमम सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। अगर ये इवेंट्स खत्म होने के बाद जो स्ट्रिंग हैंडलिंग, जो भी चीज कुछ छोटे मोटे चीज कुछ डाउट्स है तो 1-2 क्लास के अंदर वो कंडक्ट कर, ठीक है फ्रेंड्स। आफ्टर दैट आई कैन शेयर द एंटायर नोट्स इन द ग्रुप्स, डोंट मेक मींस एनी मींस हरियपिंग्स। लोग कहते हैं सर भेज नहीं रहा है, इससे सोचो मत। एज ए टीचर आई हैव दैट such type of responsibilities, all are our students, so I can send the PPTs and VBA notes in the groups. Please wait 1 or 2 days. After finishing off this entire VBA portion, I want to share these PPTs and notes in your groups or through email also. Okay friends, मैं आशा रखता हूँ आप लोगों का थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सो आज का क्लास में हमने क्लियरली ये डिस्कस किया है। सो VBA के अंदर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, फिर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, फिर अगेन उदाहरण के लिए हमने रेंज का प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया है, फिर रेंज का मेथड्स, वर्कबुक्स का प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत किया, फिर वर्कबुक मेथड्स, वर्कशीट्स का प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत किया, फिर वर्कशीट मेथड्स। सो ऑल दीज properties and methods are theoretically completed. We are already done little bit practical in the Saturday, but remaining practicals we can complete in the next class, means tomorrow section. After that events is pending, so events will take 1 class. Thank you friends, thank you for all of you for joining this class. मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद बताना चाहता हूँ जिन्होंने ज्वाइन किया है। once again thank you for all of you. Robin sir, thank you sir. Thank you, sir. Thank you so much. Okay sir, thank you sir, thank you. Morning sir.